بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستانی وفد نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس سے ملاقات کی ہے۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کا خط پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ سیکریٹری جنرل بھارت کی جانب سے اشتعال انگیزی سنتاس معاہدے کی معطلی کے خلاف فعال کردار ادا کریں۔ انہوں نے خاص طور پر مسئلہ جموں کشمیر پر جامع مذاکرات کے آغاز کی ضرورت پر زور دیا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستان کے وفد نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات کی۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی اس ملاقات میں بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو وزیر اعظم پاکستان کا خط پیش کیا اور انٹونیو گوٹریس کی جانب سے تحمل، مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دینے والے بیانات اور کوششوں کو سراہا۔ بلاول بھٹو نے بھارت کی جانب سے بغیر شواہد الزامات کو سختی سے مسترد کیا اور کہا کہ بھارتی اقدامات پورے خطے کے استحکام کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ سابق وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ بھارت نیا معمول قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو ایٹمی خطے میں ایک بڑے تنازع کو جنم دے سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے سیکریٹری جنرل سے درخواست کی کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے خاتمے، مکالمے کے فروغ اور سنتاس معاہدے کی بحالی کے لیے فعال کردار ادا کریں۔ انہوں نے خاص طور پر مسئلہ جموں کشمیر پر جامع مذاکرات کے آغاز کی ضرورت پر زور دیا۔ سیکریٹری جنرل گوٹریس نے یقین دہانی کرائی کہ اقوام متحدہ کشیدگی میں کمی اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے تمام کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی گئی۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ بھارت نے تحقیقات اور ثبوت کے بغیر پہلگام واقعے کا الزام لگایا۔ پاکستان نے بھارت کے 6 طیارے مار گرائے۔ مذاکرات ہی امن کا واحد راستہ ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری قیمت ادا کی ہے۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ ان کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی دہشت گردوں نے شہید کیا۔ پہلگام واقعے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کو تحقیقات کی پیشکش کی۔ عالمی برادری بھارت کی جارحیت کا نوٹس لے، دہشت گردی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ بھارت نے جارحیت کرتے ہوئے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ دہشت گردی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ 2 ایٹمی طاقتیں جنگ کے دہانے پر آ گئی تھیں۔ ہم نے دیکھا حالیہ کشیدگی کتنی تیزی سے آگے بڑھی۔ دنیا سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کسی کی لائف لائن کاٹ دی جائے تو کیا رد عمل ہوگا؟ صورتحال بگڑنے سے پہلے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ مودی کو دیکھیں تو لگتا ہے نیتن یاہو کی کاپی ہے۔ بھارت نے جب پاکستان پر حملہ کیا تو اس نے اسرائیلی ڈرون کا بھی استعمال کیا۔ خطے میں کشیدگی کی بنیادی وجہ کشمیر کے مسئلے کا حل نہ ہونا ہے۔ بھارتی اقدامات خطے کی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث بنے۔ امریکی صدر اور وزیر خارجہ نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا۔ بھارت نے حملے میں مساجد کو نشانہ بنایا۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ بھارت کے ساتھ امن چاہتے ہیں لیکن شرائط پر نہیں۔ پاکستان کے پاس بھارت کے خلاف شکایات کی لمبی فہرست ہے۔ بھارت اب نیا اصول خطے میں نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھارت کو پہلے بھی شکست دی، اگلی بار جارحیت کی تو پھر مزہ چکھائیں گے۔ پشاور میں جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پانی کے ذخائر میں اضافے سمیت اب ہمیں پاکستان کی خوشحالی کے لیے بڑے اور کڑے فیصلے کرنے ہوں گے۔ پانی ایک ایک قطرہ پاکستان کے عوام کا حق ہے۔ 1960 کے انڈس واٹر ایگریمنٹ کا، اور اس کے لیے ہندوستان دن رات ہمیں دھمکیاں دیتا ہے۔ جس طرح اس جنگ سے پہلے دھمکیاں دے رہا تھا، اس کا مزہ اس نے چکھ لیا۔ اب مزید بھی اگر اس نے خدا نہ خواستہ کو حرکت کی تو پھر اس کو سبق سکھائیں گے۔ لیکن پانی کے اوپر ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ چاروں صوبوں کو ہم دعوت دیں گے، بیٹھ کے بات کریں گے کہ پانی کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے کس طرح بڑھانی ہے ہم نے، تاکہ ہندوستان کے ناپاک اور مذموم عزائم جو ہیں وہ دفن ہو جائیں۔ کراچی کی ملیر جیل سے فرار 90 قیدی دوبارہ پکڑ لیے گئے۔ 120 کی تلاش جاری ہے۔ قیدیوں کے فرار کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے۔ ملیر جیل میں CCTV کیمرے ناکارہ اور ناکافی ہونے کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے احکامات پر IG جیل کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ DIG جیل اور سپرنٹنڈنٹ ملیر جیل کو معطل کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر الفتوں کے رنگ بکھیرنے والی ثنا یوسف دل میں ارمانوں کے انبار لیے اسلام آباد تو آ گئی مگر بے دردی سے قتل کر دی گئی۔ ثنا یوسف کی دلخراش داستان سنا رہے ہیں زرغون شاہ۔ میں نے ابھی کھیلنا ہے، کودنا ہے، جھومنا ہے، گانا ہے، دکھی نہیں ہونا، مسکرانا ہے۔ مجھے جینا ہے اسلام آباد کے حسین رنگوں کی دل افروز ترنگ کے سنگ۔ میں نے محبتیں بانٹنی ہیں اپنی باتوں کے دوش پر۔ میں شوق و چنچل ہوں کیونکہ میں نے ابھی
जीना है। कुछ यही सोच कर चतराल की दिलकश और दिलफरेब वादियों से एक प्यारी, राज दुलारी और नाजुक अंदाम बच्ची शहर इक्तदार की दिलफरेब रानाइयों में आ बसी। लेकिन इस नाजुक परी को क्या मालूम था कि वो अपनी हयात की बहार भरपूर को अभी छुएगी भी नहीं कि बेरहमी से कत्ल कर दी जाएगी। कोई सफाक कातिल कहीं से उठेगा और उसके नाजुक बदन में बारूद से भरी गोलियां उतार देगा। चतराल की बर्फजार और गुलपोश वादियों से इस्लामाबाद आने और यहाँ बसेरा करने वाली 17 साला मासूम और खूबरू सना यूसुफ की दरख्शां हयात का चिराग 2 जून को इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में गुरूब आफ्ताब के वक्त गुल कर दिया गया। इस्लामाबाद में कत्ल की गई टिकटॉकर सना यूसुफ को चित्राल में उनके आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। टिकटॉकर सना यूसुफ को पीर के रोज़ इस्लामाबाद में कत्ल किया गया था। सना यूसुफ की मैयत इस्लामाबाद से चित्राल मुंतकिल की गई, जहां नमाज जनाजा के बाद उन्हें आबाई कब्रिस्तान में दफन किया गया। पुलिस के मुताबिक सना यूसुफ के कातिल 22 साल के उमर को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम बार बार मकतूला सना यूसुफ से राबता करने की कोशिश करता रहा। कत्ल का मुहर्रिक सना यूसुफ की जानिब से मुलजिम को मुसलसल मुस्तरद किया जाना था। पुलिस ने मुलजिम उमर के पास से कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल भी बरामद कर लिया। मकतूला के वालिद का कहना है कि उम्मीद है उनको इंसाफ मिलेगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए कहा, भारतीय फौज की पेशकदमी को रोकने के लिए हमें 3-4 किलो के छोटे जौहरी हथियार इस्तेमाल करने चाहिए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के खिलाफ हालिया जंग में बेहतरीन काम अंजाम दिया। हिंदुस्तान का जो आर्मर है, जो टैंक्स हैं या उनकी आर्टिलरी है, वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के जोग्राफाई सरहदों के अंदर आए। जैसे ही वो मूव करें, हमें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, छोटे यील्ड के न्यूक्लियर वेपन्स, हिरोशिमा नागासाकी पे 8 और 10 किलो टन के वेपन्स इस्तेमाल हुए थे। पाकिस्तान ने महारत हासिल की है मिनिएचराइज्ड न्यूक्लियर वेपन्स में। 3 से 4 किलो टन के न्यूक्लियर वेपन जो होते हैं, जैसे ही उनका दस्ता आर्मर मोबिलाइज होता है, उनको इंडिया के अंदर ही हिट करें और तबाह बर्बाद। अच्छा, अब इस कन्फ्रंटेशन में, इस जंग में पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत बहादुरी से भारत को नाखून चने चबवाए। एयरफोर्स ने बेहतरीन किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने हमेशा पाकिस्तान की जोग्राफाई सरहदों की बहादुरी से उन्होंने मतलब उसको डिफेंड किया। अमरीका में मौजूद आला पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के रुकन खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा है कि सिफारती मुहिम के लिए आइंदा तश्कील दिए जाने वाले पार्लिमानी वफूद में अपोजिशन को भी शामिल किया जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तानी वफ्द ने भारत की रियासती दहशतगर्दी के शवाहिद आलमी बरादरी को पेश किए। तो ये तो एक सफारती मिशन है जो एसेंशली पाकिस्तान की जो आने वाली सफारती मुहिम है उसकी बुनियाद रख रहा है। अगले चंद माह में पार्लिमानी वफूद पूरी दुनिया में जाएंगे और जिसमें अपोजिशन की भी नुमाइंदगी होगी। अच्छा, अपोजिशन की नुमाइंदगी होगी, जो पार्लिमानी डेलीगेशन जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जाए। आपका जो डेलीगेशन है उसने जो भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसके हवाले से कोई डोजियर तैयार किया हुआ या कोई फैक्ट्स आपने मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों के सामने पेश किए हैं? जी, हम कर रहे हैं, और BLA के हवाले से भी और TTP के हवाले से जो हिंदुस्तान की फाइनेंसिंग उनको हासिल है उसकी जो एविडेंस है वो भी हमने उनको प्रेजेंट की है। कोई तरीके कार वजह किया जाए, सवाल ये कि अगर हमारे पास कोई इंसिडेंट हो तो हम हिंदुस्तान पर मिसाइल चला दें और वहां इंसिडेंट हो तो वो हम पर मिसाइल चला दें। हमने दुनिया से यही कहा है कि काउंटर टेररिज्म का जो भी मैकेनिज्म है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी एक बाकायदा काउंटर टेररिज्म का एक ऑफिस मौजूद है, तो इसका कोई मैकेनिज्म बनाए जिस पर आकर टेबल पर सबूत और शवाहिद से बात हो। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत में दौर में दवाइयों की खरीदारी में खुर्द बुर्द का इंकशाफ हुआ है। महकमा सेहत के साबिक DG समेत 10 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला KP ने एहलकारों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा शीबा हैदर से। शीबा, क्या मामला है, क्या डिटेल्स है मजीद? जी, महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में निगरान दौरे हुकूमत में दवाइयों की खरीदारी में खुर्द बुर्द के मामले में महकमा सेहत के साबिक DG समेत 10 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने महकमा सेहत के एहलकारों को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। दस्तावेज़ात के मुताबिक तमाम एहलकारों को 10 से 14 दिन के अंदर जवाब देने की हिदायत की है। जवाब न मिलने पर एहलकारों के खिलाफ सबूत के तौर पर यकतरफा कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। इन अफसरान के खिलाफ बदउनवानी और बदइंतजामी की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है। मामले खसूस
खसूसी इंसदाद बदनवारी मुसद्दिक अब्बासी की सरबराही में कमेटी ने तहकीकात की है। तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर वज़ीर आला ने इन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। नोटिस में इन एहलकारों से 17 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की भी सिफारिश की गई है। निगरां दौर में दवाइयों की खरीदारी के लिए 3 अरब से ज्यादा की रकम जारी हुई है। एडवर्टाइज कंपनियों ने 1 अरब 20 करोड़ रुपए वसूल करने के बावजूद जो है वो दवाइयां नहीं दी। हुकूमत को सिर्फ 20 करोड़ रुपए की अद्वियात फराहम की गई है। दूसरी जानिब मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तो उनका ये कहना था कि करप्शन करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इन एहलकारों को न सिर्फ मुलाजमत से फारिग किया जाएगा बल्कि इनसे वसूली भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया शिवा हैदर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। रवा माली साल के पहले 11 माह के दौरान हमेशा की तरह तनख्वाहदार तबके का टैक्स अदायगी में हिस्सा सबसे ज्यादा 499 अरब रुपए रहा है। थोक और परचून के कारोबार से मजमूई तौर पर 55 अरब 66 करोड़ रुपए का टैक्स हासिल हुआ है। इस्लामाबाद से अशरफ मलखम रिपोर्ट करें। रवा माली साल के पहले 11 माह सबसे ज्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबके ने 499 अरब रुपए अदा किया। जियो न्यूज को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक रवा माली साल के पहले 11 माह के दौरान बरामदात के शोबे से 96 अरब 36 करोड़, जायदाद की फरोख्त से 110 अरब 18 करोड़, खरीदारी से 109 अरब 68 करोड़ रुपए टैक्स वसूल हुआ। थोक के कारोबार से 11 माह में 22 अरब 36 करोड़ और परचून के कारोबार से 11 माह में 33 अरब 30 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा हुआ। इसी तरह मई में तनख्वाहदार तबके ने 54 अरब 35 करोड़ 40 लाख रुपए टैक्स अदा किया। बरामदात से 8 अरब 29 करोड़, जायदाद की फरोख्त से 13 अरब 5 करोड़, जायदाद की खरीदारी से 12 अरब 66 करोड़, थोक के कारोबार से 1 अरब 96 करोड़ और परचून के कारोबार से 3 अरब 32 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा हो सका। अशरफ मलखम, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। कौमी इख्तिसादी कौंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट और मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की मंजूरी दी जाएगी। इसी पर मजीद बात करते हैं इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान से। सैफुर रहमान, बताइएगा इजलास की क्या डिटेल्स है मजीद? जी बिल्कुल, आज कौमी इख्तिसादी कौंसिल जो हाईएस्ट फोरम होता है उसका इजलास होगा वज़ीर आज़म की सरबराही में, जिसमें जो हमारा जो कौमी तरक्याती बजट है उसकी मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ साथ जो मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क है आइंदा माली साल के लिए उसकी मंजूरी दी जाएगी। बुनियादी तौर पर जो कौमी इख्तिसादी कौंसिल होती है, जो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ था वफाकी वजीर मनसूबाबंदी की सरबराही में, जो इन अहदाफ की मंजूरी दी थी उस कमेटी के इजलास में उनका जायजा लेगी, इनकी हतमी मंजूरी दी जाएगी। तो इस हवाले से तकरीबन 4000 अरब रुपए के करीब जो है वो कौमी तरक्याती जो बजट है उसकी मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। इसके साथ साथ आइंदा माली साल के लिए जो शरह नमू है उसके लिए 4.2% उसकी जो ग्रोथ है उसकी मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। इसमें जो ज़राइत है, जो हमारी तरक्की की शरह है 4.5% है और इंडस्ट्री के लिए 4.3% और खदमात के शोबे के लिए 4.7% जो है वो शरह हदफ जो है वो मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। महंगाई के लिए 7.5% का हदफ रखे जाने का इम्कान है। तो इस हवाले से कल इजलास होगा, चारों सूबाई वज़राए आला शिरकत करेंगे, आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदे शामिल होंगे, गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे शामिल होंगे। तो इसमें कौमी इक़्तिसादी कौंसिल आइंदा माली साल का जो तरक्याती बजट होगा उसकी मंजूरी देगी और साथ ही मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की मंजूरी भी देगी। बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान, आपने अपडेट किया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकने सिंध असम्बली शहजाद कुरैशी ने कहा है कि कराची के अवाम को बिजली की शदीद लोड शेडिंग, पानी की किल्लत और ईद से पहले जराइम की बढ़ती हुई वारदातों का सामना है। एक बयान में शहजाद कुरैशी का कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी मफलूज कर दी है। शदीद गर्मी में 12 से 16 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। शहर में पानी की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है। टैंकर माफिया खुलेआम मुंह मांगे दाम पानी फरोख्त कर रहा है। ईद से कबल डकैती की वारदातों में खतरनाक इजाफा नजर आ रहा है। शहजाद कुरैशी ने मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत फौरी तौर पर इन तमाम बहरानों का हल निकाले। CPNE ने 2024-25 की पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट जारी कर दी है। एक साल के दौरान हमलों में 7 सहाफ़ी कत्ल हुए। सहाफ़ियों पर इग़वा, तशद्दुद और मुक़दमात के 104 वाक़यात रिपोर्ट हुए। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी 152वें नंबर पर है। आसिफ बशीर चौधरी रिपोर्ट करें। CPNE के ज़ेरे एहतमाम पेन ऑफ चेन के उन्वान से इस्लामाबाद में मुनक्किद की गई तकरीब में पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2024-25 जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पेका एक्ट 2025 और हत्या के इज़्ज़त कानून 2024 आज़ादी इजहार पर हमला है। पंजाब और वफाकी हुकूमत ने मीडिया कवानीन पर स्टेक होल्डर्स से मुशावरत नहीं की। सहाफत पर रियासती व गैर रियासती दबाव है और आज़ादी इजहार राय शदीद खतरे में है।
रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई 2024 से 3 मई 2025 के दौरान 7 सहाफियों को कत्ल कर दिया गया। किसी कातिल को सजा नहीं मिली। सहाफियों पर अगवा, तशद्दुद और मुकदमात के 104 वाक़यात रिपोर्ट हुए। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी 152वें नंबर पर पहुंच चुकी है। रिपोर्ट में मुतालबा किया गया है कि मुतनाज़ा कवानीन वापस लिए जाएं। CPNE के सदर काज़म खान ने तकरीब से खिताब में कहा कि हम इस रिपोर्ट को शहीद सहाफियों के नाम करते हैं। ये रिपोर्ट तमाम उन लोगों के नाम करता हूँ जिन्होंने तशद्दुद भी सहा, अक्सरियत इस वक्त मेरे सामने है जिन्होंने जुल्म भी सहा, बर्दाश्त भी किया, लेकिन इसके बावजूद वो हक़गोई से बाज नहीं है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की सदर एंथोनी डोमेनिक ने खिताब में कहा कि पेका कानून में तरमीम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से होनी चाहिए। अमेंड के सदर अजहर अब्बास का पैगाम सीनियर सहाफ़ी रेहान अहमद ने पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि मीडिया हाउसेज को दबाव का सामना और सच बोलने की सजा दी जा रही है। सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास ने कहा कि आज हम पर इतना बुरा वक्त है कि पेका के खिलाफ एक मुश्तरका एडिटोरियल नहीं लिख पाए। ये पेका लॉ एक्चुअली इज मार्शल लॉ, जिसके तहत हर चीज़ को आप किसी वक्त भी आप रोक सकते हैं, किसी को भी रोक सकते हैं। हम हर जगह डायलॉग की बात करते हैं, तो हम खुद क्यों नहीं डायलॉग शुरू करते हैं? हम बिल्कुल इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि PFUJ एक होगी तो बहुत सी रुकावटें हम दूर कर सकते हैं। कोई नहीं भी लड़े तो हम लड़ सकते हैं। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने कहा कि आज तक किसी सहाफ़ी का कोई कातिल नहीं पकड़ा गया। सहाफ़ी रहनुमा राना अजीम ने कहा कि आज से ही तहरीक का आगाज होना चाहिए। सीनियर एंकर हामिद मीर ने कहा कि मौजूदा दौर में भी 8 एंकर्स ऑफ एयर हुए, अब भी वही हो रहा है जो पिछले दौर में हुआ। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हारिस खलीक ने कहा कि आज भी मुल्क में नोआबादियाती निज़ाम राइज है। भारत के साबिक सेक्रेटरी खारजा और चीन में साबिक भारतीय सफ़ीर विजय गोखले का कहना है कि चीन की पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक कुर्बत कई देरीना जोग्राफियाई और सियासी मकासद की वजह से है। चीन पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक असासे की नज़र से देखता है। चीन ने मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया है। खित्ते में चीन पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से भारत को दरपेश सूरत हाल का तज्ज़िया करते हुए विजय गोखले का कहना था कि चीन पाकिस्तान को भारत के साथ तवाज़ुन कायम करने वाले मुल्क के तौर पर देखता है। चीन के लिए पाकिस्तान अरब समंदर तक रसाई का एक दरवाज़ा है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान अमेरिका के कैंप का हिस्सा ना बने, क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को चीन अपनी कौमी सलामती के लिए ख़तरा समझता है। इसके अलावा चीन समझता है कि पाकिस्तान की दोस्ती चीन के अपने नस्ली सरहदी इलाकों में मजहबी इंतहा पसंदी पर काबू पाने में मदद देगी। इसके अलावा चीन ने CPEC के ज़रिए इस खित्ते में अपने माशी और फ़ौजी असर व रसूख को बढ़ाया है। चीन बहर हिंद में अपना बहरी बेड़ा भी तैनात करने का इरादा रखता है, जिसके लिए गवादर ऐसी बंदरगाह है जहां चीनी बहरिया अपनी सप्लाई और मरम्मत का काम सर अंजाम देगी। विजय गोखले का कहना था कि चीन को पाकिस्तानी मईशत की ख़राब सूरत हाल और चीनी अमले पर हमलों जैसे मसाइल का सामना तो है, लेकिन पाकिस्तान के साथ शराकतदारी को चीन तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी के तौर पर देखता है, जिसमें उसे डॉलर्स की सूरत में नहीं कौमी सलामती के हवाले से फ़ायदा हासिल होंगे। 57वां मैंगो फेस्टिवल आज से मीरपुर खास में शुरू हो रहा है। 2 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल में 200 से ज़ायद इक़साम के आम नुमाइश के लिए रखे जाएंगे। उधर मैंगो फेस्टिवल के इनेकाद पर मीरपुर खास में काश्तकारों का धरना भी जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि पानी की तकसीम में बद इंतज़ामी और करप्शन से नुकसान हो रहा है। मैंगो फेस्टिवल में 200 से ज़ायद इक़साम के आम नुमाइश के लिए रखे जाएंगे। पहले दिन काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन और इफ्तिताही तकरीब होगी। दूसरे दिन ज़रई सेमिनार और आगाही नशिस्तें मुनक़्क़िद होंगी। चेयरमैन फेस्टिवल कमेटी का कहना है कि ईद की तातीलात के बायस फेस्टिवल 3 रोज़ के बजाय 2 दिन तक महदूद होगा। दूसरी जानिब मैंगो फेस्टिवल के इनेकाद के मौके पर मीरपुर खास में काश्तकारों का धरना भी जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि पानी की तकसीम में बद इंतज़ामी और करप्शन के बायस आम के काश्तकारों को भारी माली नुकसान का सामना है।